أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. Since Allah subhanahu wa ta'ala was wa jalla wa ala has created this earthly life and human beings, and has prescribed and set an objective and the purpose for the purposeful life for everything, and everything except the human being and jinnat, they are living their purposeful life and fulfilling whatever Allah subhanahu wa ta'ala desired from them. But because the human being have different understanding and mind of their own and freedom to think and choose,
And because of that, many or most, they fail to fulfill that purpose. And because Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge is complete and absolute, and there's no deficiency and shortcoming in there. So other creation does and act according to the knowledge and command of Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Therefore, they don't make mistakes and they don't become disobedient. Amongst the human beings and jinnat, how much ever or to whatever extent they also fulfill and understand the world through the word and knowledge of Allah Azza wa Jal, those human beings also fulfill their purpose very well. And those who at one stage of their life or another stage, they think that they know better, because a person who is committing kufr or committing sin, in other words, they are saying that we know better than Allah subhanahu wa ta'ala, because they are making that decision by thinking of their benefit, whilst it is Allah Azza wa Jal who is in the favor of human being. Other creation, they themselves are tools, and especially the other creation like shaitan and worldly people, they themselves are tools through which the human being is tested. And many of them, they have lost this purpose and direction themselves. So all it comes down to two things: the sins or the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala comes down to two things, and every other matter then emanates from there. And similarly, all the acts of virtue and good deeds and amal salihah, they also emanate from two things. All other is then detail of it. Number one, where do the sins emanate from? Or things which takes a person away from Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal are mainly two things. One is called ghafla
and heedlessness and forgetfulness. And second is disobedience. So whoever have come further away from Allah subhanahu wa ta'ala wa jal has been victim of one of these two things. Either they have been in ghafla, meaning that they have forgot Allah subhanahu wa ta'ala, they were not in the presence or remembrance, or they were not conscious, or they have been disobedient. Because when a person becomes heedless and ghafil, then the result will be that they are going to commit disobedience and mistake. Like a person who is driving a car. So two things they can do wrong which can harm them. One is that they drive it in a wrong way or very recklessly, that they involve themselves in an accident. And second is that they become inattentive, they're not paying attention and forgetful of that driving. But this one thing, this forgetfulness or being unattentive and not being conscious of the driving, this will lead them to commit a mistake of driving practically, and it will then end up either having an accident or even actually killing themselves or others. So likewise, your car and your vehicle, which is the body, which you often forget that this is the vehicle which you are sitting in, which Allah subhanahu wa ta'ala has placed you in there, and you are the driver. So same thing happens, that either a person becomes inattentive, they are not attentive towards Allah, they are not in the presence of Allah, or they are forgetful, they are not conscious, and they are ghafil. And after that, the other thing is, as I said, disobedience, which often results from forgetfulness. तो जितने दूसरे सारे जो गुनाह हैं वो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से बंदा अल्लाह से दूर होता है. एक यानी गफलत, यानी भूल जाना ज़िंदगी के मकसद अल्लाह को, अल्लाह की हुजूरी से, और दूसरा अल्लाह की नाफरमानी. बस जितनी सारी डिटेल है और सारे इसके नीचे आएंगे लिस्ट में. एंड ऑल दोज गुड डीड्स, जितने चीज़ें अल्लाह के करीब ले जाती हैं, all those things which take you closer to Allah, they also come from two things. वो भी दो चीज़ों से ही पैदा होती हैं. One is the presence or having attention toward, paying attention towards Allah subhanahu wa ta'ala, or being conscious of the presence and the might of Allah, or the remembrance of Allah, the state of remembrance and presence and being conscious, aware. And second is, which takes person to Allah subhanahu wa ta'ala, is ita'a, is obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. बस ये दो चीज़ें.
तो दो चीज़ें जो है वो बंदे को अल्लाह से दूर ले जाती हैं, दो चीज़ें बंदे को अल्लाह के करीब ले जाती हैं। ये शाइख ने समझाया। दूसरी सारी चीज़ें बस इसकी ही तफसील है, इसी की जंग है सब, शैतान और इंसान के दरमियान। करीब ले जाने वाली हैं कि बंदा शऊर हो कि अल्लाह के साथ बंदा रह रहा है, शऊर हो, जिसको हम हुजूरी भी कह सकते हैं, ज़िक्र भी कह सकते हैं, बट पीपल don't understand when it is said zikr. Zikr, yes, means remembrance. Remembrance means that you remember something. I say, you remember me, you remember what you ate last week or yesterday, then you're going to think about the eating, and you will remember the food or anything. So some people even remember whilst they are forgetful. So it's as though they have not remembered really. तो दो चीज़ें अल्लाह के करीब ले जाएंगी, एक अल्लाह की याद यानी अल्लाह को हुजूरी, अल्लाह की हुजूरी में रहना, और शऊर रहना कि अल्लाह पाक मौजूद है, और दूसरा फिर अल्लाह की इताअत और फरमान बरदारी। तो ये दो चीज़ें, जितनी भी नेकियां हैं, ऑल द वर्च्यूज़ एंड गुड डीड्स, बी इट नमाज, बी इट ज़कात, सला, रमज़ान और एनी थिंग, जितने भी बताई गई हैं चीज़ें शरीयत में, वो इन्हीं दो चीज़ों के लिए बताई गई हैं कि दैट यू अचीव दीज टू थिंग्स। एंड ऑल थिंग्स विच हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, जितनी चीज़ों से मना किया गया है, वो भी यही कि भाई ये दो, these two things should not be in you. That's why you have been prohibited from certain actions and things कि भाई they lead to these two things. तो अब दूसरी फिर सारी की इसकी तफसील है, then there are details, then there are thousands and thousands and hundreds and thousands of virtues. Then there are hundreds and thousands of sins, but they are all covered by these two things. On one side it is ghafla and being forgetful, not being inattentive and disobedient, and the other side is to have hudur, be conscious of Allah subhanahu wa ta'ala and obedience. तो इसीलिए जब वो तज़किया, the mashayikh, when they begin purification and tazkiyah, so all people, the other people also try to treat the humanity, the disease of humanity, that human beings are actually disobedient, etc. So science of self-purification, it fundamentally treats these two things. So for example, if you will see that where does the Islam begin from? It begins from saying La ilaha illallah. So this means that you are saying that I will forget the false deities, and illallah, I am going to remember Allah. So you remember Allah and you forget, you negate the others. And you say Muhammadur Rasulullah, that life I am going to live in obedience to Allah on the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in the kalme में यही दो चीज़ें बताई गई कि remembrance of Allah and His Messenger, and then following Allah and His Messenger, and to stop from others. All other is then detail. तो जितनी चीज़ें मना की गई है उनसे यही जो है कि भाई वो अल्लाह भूल जाता है और वो नाफरमानी है. बस शराब मना है, alcohol, that makes you unconscious of Allah, and it is act of disobedience. You will do many bad things. चोरी है, stealing,
that a person is, when they do, they are inattentive towards Allah subhanahu wa ta'ala. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन ईमान की हालत में चोरी नहीं करता, कि उस वक़्त जो ईमान है, फरमाया कि वो छतरी की तरह उसके ऊपर जो है ऐसे साया किए होता है। ईमान की हालत में वो जिना नहीं करता, कि ईमान वो छतरी की तरह वो उसके ऊपर होता है, उसके अंदर नहीं। अंदर तो उसकी जड़ होती है सिर्फ, मीनिंग द रूट इज देयर। अगर छतरी होती है भाई, एक निचला हिस्सा है, एक ऊपर वाला हिस्सा, वन इज द टॉप पार्ट, वन इज द बॉटम पार्ट, लेकिन बट द मेन पार्ट एक्चुअली गोज आउट। तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद यही है द गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह की हुजूरी, अल्लाह की मौजूदगी, कि नाफरमानी एक्सीडेंट करेगा ही बंदा तब कि जब वो भूल जाएगा। सो द शयूख एंड द मशाइख ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ तज़किया एंड एहसान, तो वो देखे बंदे को यही दो चीज़ों की तालीम देते हैं। उसको मसाइल तो गलत काम कहेंगे वो छोड़ दो, a particular sin, they will start the person by mentioning to him the consciousness, the hudur, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala। वो अल्लाह की याद बताएंगे उसको। और दूसरा जो नाफरमानी है, द डिसओबीडियंस, कि भाई ये अब छोड़नी है आहिस्ता आहिस्ता। यानी ना अल्लाह की याद करनी है और नाफरमानी छोड़नी है, और इताअत जो है फरमाबरदारी करनी है, और गफलत को छोड़ना है। So they know that this is to cover this in whole of the life of human being is a big task. So they begin it from a small part of the human being life, from 24 hours. Masalan, when the Mashayikh say, for example, you stop from one sin, this means the process of stopping of disobedience has started. When they say do this virtue, अब ये तुम्हें अच्छा अमल ये करना है, तो वो इताअत उन्होंने शुरू कर दी। And when they say you need to at least in the prayer or in the zikr be in the presence of Allah, so slowly the presence of Allah subhanahu wa ta'ala starts coming and the ghafla starts to remove. But this journey completes when the person reaches fully almost 100% consciousness of Allah and ita'a of Allah, and leaves the disobedience and ghafla from Allah subhanahu wa ta'ala. He is not ghafil and he is not a disobedient. तो यही दो चीज़ें. Now this has different colors. Shaitan is not bothered how he make you forgetful. He uses dunya, he uses desires, he uses yourself. अब उसका ये है कि उनने तो ये दो चीज़ें अचीव करनी है शैतान ने. From you he want two things. One, you become forgetful. एक तो तुम भूल जाओ. उसके लिए वो दुनिया को इस्तेमाल कर रहा है, फिल्म को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, ज़रूरियात को. योर ओन नीड्स आर बीइंग यूज्ड. खाने पीने में लग के लोग भूल गए, कोई कारोबार में लग के भूल गया, सियासत में लग के भूल गया. वो जिस तरह भी भूल जाए, उसके शैतान को इससे कोई गरज नहीं. All he wants is the result, and the result is that he wants you to be forgetful. For that, you can use women, he can use children, he uses all your needs, he can use your needs like sleep and eating and drinking and work.
but he wants the end result. And second, he wants you to be disobedient. Ab wo kaise, however you can be disobedient, he's not bothered. So for that he uses as well the dunya, the world, the people, the friends, the family, anger, jealousy, other things, so that you become disobedient. So if you have these two things, then you are really you have done wrong to whom? You have done wrong to yourself. You have actually failed yourself. You have destroyed yourself. No one harms the others. No one harms Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said, Man asa'a fa'alayha. Whoever is disobedient, all harm is upon him. Man amila salihan fali nafsi. Who does the good deeds, he's doing it for his own benefit. No benefit to Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal. तो जितनी भी शरीयत के अहकाम हैं, if you will think about them, they are making you conscious of Allah, and they are asking you to be in obedience to Allah, or they are stopping you from disobedience and stopping you from forgetfulness. बस यही खुलासा है. बाकी सारी फिर तफसील है, वो जंग है, कोई मतलब जंग में यही होता है कि that you want to win from the enemy. If you can win by bullets, you can win it. If you can win by sending women and misguiding them, you use that. That is just the tools. तो अब कैसे पता चले, how one can know that which things make you forgetful and which things make you disobedient? Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy upon us. Allah ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी कि कुरान हदीस में वही चीज़ें बयान कर दी कि ये चीज़ें तुम्हें गाफिल कर देंगी, ये चीज़ें तुम्हें नाफरमान बना देंगी. तो बहुत ईजी हो गया असल में मसला तो हमारे लिए. For us then, we don't even have to think now that which things will make us disobedient and forgetful, which things will make us obedience to Allah and will make us remember and conscious of Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala even had not left these things for us to do. Allah ने हम पर छोड़ा ही नहीं, इसको भी नहीं छोड़ा. हालांकि ये था तो ये कि हम खुद तलाश करते कि भाई ये अब इशू तो ये है कि भाई कैसे, भाई कौन कौन सी चीज़ें बंदे हमें अल्लाह से गाफिल कर रही हैं, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, कौन सी चीज़ें हमें अल्लाह को याद दिलाएंगी और अल्लाह की फरमाबरदारी कराएंगी. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला even did not leave this to us, but he actually in black and white mentioned, and his messenger sallallahu alaihi wasallam clarified practically almost every action, minute action, which actually makes you obedient and in the remembrance of Allah and stops you from being disobedient and forgetful of Allah subhanahu wa ta'ala. तो कुरान में बस इसी तरह की ये ही इन चार ही चीज़ों का in a summarized way these four things are mentioned. मतलब कुफ्र है, निफाक है, all these things make you forgetful of sins, गुनाह है, ये बंदे को अल्लाह को भुला देती हैं चीज़ें. और नेकी जितने भी नेक अमाल हैं वो बंदे को याद दिलाते हैं. दे मेक यू अवेयर ऑफ अल्लाह's presence, they make you obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. तो इसीलिए because this is the purpose, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मकसद है. So all the worships of Islam are for this purpose.
जितनी इस्लाम की इबादत हैं तो उसमें यही मकसद होगा भाई इसको अल्लाह को याद करे, अल्लाह को भूले ना, अल्लाह की नाफरमानी ना करे, ये मकसद हो गया। इबादत तो बनाई इसलिए जाती है। सो दैट इज़ वाई फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग इज़ कमिंग। अब रोज़ा आ रहा है तो रोज़ा तो बजाते खुद एक इबादत है, लेकिन जो बंदा इन दो चीज़ों को नहीं करेगा रोज़े में भी, देख रहे बंदा जो नाफरमानी कर रहा है रोज़े में भी, अल्लाह को भूला हुआ है रोज़े में भी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं साफ के इस रोज़े से सिवाय भूख के कुछ नहीं मिल रहा इसको। इसका पता लग गया भी रोज़ा कोई असल वो बेजाती ही कोई चीज़ नहीं कि भाई वो आपको निजात दे देगा अगर आपने वो उसमें अल्लाह की याद और अल्लाह की नाफरमानी से बंदा ना बचा। इसी तरह नमाज है, फरमाया कि मल्लम तन्हाउ सलातहु अनिल फहशाइ वल मुनकर, जिसकी नमाज उसको बुराई से और बेहया कामों से ना रोके, उसकी नमाज उसको अल्लाह से दूर कर रही है। He is even becoming more away from, further away from Allah सुब्हानहू व तआला, कि उसने तो करीब करना था वो अब दूर कर रही उसको। इसी तरह जो है जो दूसरे अमाल हैं, अदर अमाल शरिया हैव प्रिस्क्राइब्ड। सो आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये दो चीज़ें ज़हन में बैठा लें, and know that all things which I am commanded to do are to achieve these two things in the Quran and the Sunnah and the Mashayikh, and things which you are asked to abstain you are asked to do because you save yourself from these two things, disobedience and actually forgetfulness of Allah. तो आप देख रहे हैं कि ये इसमें कितना बड़ा विजडम है दो ही चीज़ों में, कि अल्लाह की इताअत और हजूरी और गुनाह और गफलत जो है यही सब। नाउ इफ़ यू रिकॉल, अगर आप थोड़ा सा सोचें, जो हमारी जो माउंटेन डायग्राम है, द माउंटेन डायग्राम ऑफ द तरीक विच वी यूज़, उसके नीचे ये क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है स्टेट ऑफ सिनफुलनेस एंड हीडलेसनेस। नीचे लिखा हुआ है कि भाई गुनाह और गफलत की हालत। अब आप तो पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ जी, लिखा हुआ है जी गुनाह और गफलत की हालत, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ पूरा समुंदर बंद है उन्हीं दो लफ्ज़ों में, उन्हीं दो हालतों में। वो ऐसी कि भाई पूरी किताबों का निचोड़ जो है वो एक दो लफ्ज़ों में बयान कर दिया, भाई ये दो चीज़ें ही हैं जो तुम्हें तबाह करेंगी, और अब इन दो चीज़ों को ख़त्म करके हजूरी तक पहुँचना और इताअत तक पहुँचना, बस यही तुम्हारा सारा काम है। बस वो जो 4 ऑब्जेक्टिव है यही तो वो है। ताज़ीमुल अम्रिल्लाह क्या है? इट इज़ द ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। ताज़ीमुल सुन्नत रसूलिल्लाह क्या है? वो इताअत है। ताज़ीमुल अम्रिल्लाह, गिविंग प्रेफरेंस टू अल्लाह's commands, it is the obedience to Allah. Giving preference to Rasulullah sallallahu is the obedience to Allah, and having compassion upon creation is the obedience to Allah. एक तो ये हो गई, they're all obedience to Allah. And the last one, hadur ma'allah, the presence of Allah, is being in the presence and conscious of Allah. तो उसके वो दो चीज़ें उसको वहाँ मिल जाती हैं, दो चीज़ें जो नीचे थी वो छूट जाती हैं, तो बस उस पर फिर अल्लाह फजल और रहमत से उससे राज़ी हो जाता है। तो ये चीज़ें समझे, दीज आर द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, दीज आर द वेरी सीक्रेट you may say wisdoms behind the commands of Sharia. So the Mashayikh, the Shuyukh, the Awliya, Salihin, because they learn and they understand these matters, and in that light they then give guidance to actually people so that they actually attain. दूसरे लोग हैं, they just might go after rituals, वो जिक्र कर रहे हैं, but they are forgetful whilst doing zikr. लेकिन वे मशाइख ही बताएंगे भाई जिक्र जो है अगर आपका राबता नहीं तो जिक्र आपको फ़ायदा नहीं है, तब उनको पता चलेगा। या वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं
और बुराई से नहीं बच रहे, उसमें नमाज में हुजूरी नहीं, देयर इज नो प्रेजेंस इन द प्रेयर, तो वो बड़ा कम फ़ायदा उनको हासिल होता है। इसी तरह हज है, हज के बारे में भी ऐसा ही है, रोज़े के बारे में भी ऐसा ही है, ज़कात के बारे में और दूसरे जितने अमाल हैं। So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave guidance on these matters in the full sunnah. हर सुन्नत यही बता रही है कि this is obedience with the presence of Allah, और यही सुन्नत का मतलब है। And if you leave that, then you are becoming as though towards disobedience and forgetful of Allah subhanahu wa ta'ala. तो हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसान बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम made it so easy for us. We just have to look at him and his actions and just blindly follow them. बस हमें ये चीज़ें हासिल हो जाएंगी। But where we fail is that when we start to use our own minds and not to have the spirit of these amals with it, then really the matter becomes very, very dangerous. So our mashayikh and the followers of the Tariqa Muhammadiyah, time to time, from Quran and Sunnah and from Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and others, they've learned certain things regarding the month of Shaban and Barat. Once Prophet ﷺ mentioned regarding those people, human beings, and those followers of the Prophet ﷺ, that sometimes they make mistakes. Sometimes they make mistakes. कभी वो तो नबी हैं जो गलती नहीं होती, वो तो दैट्स द प्रॉफिट्स एंड अंबिया अलैहिस्सलाम। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में औलिया सालिहीन हैं, उनसे बाज़ दफ़ा गलतियाँ हो जाती, तो वो बड़े परेशान होते, दे बिकम वेरी अपसेट दैट वी आर मेकिंग मिस्टेक्स। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said to one of these people who said that I have disobeyed you many times and I have committed mistakes. So Prophet ﷺ mentioned that many of my beloveds and followers, they are tested so that they learn from their mistakes. अगर बंदा अंदर से मुखलिस है, नेकी का गलबा है, तो फरमाया कि बाज़ दफ़ा बंदे की आजमाइश होती है ताकि वो अपनी गलतियों से सबक सीखे। उसे गलती हो गई है, but what he should do is learn from that mistake. So learn and do not return to evil. सीख लो एक मर्तबा और दोबारा उस बुराई की तरफ ना आओ। Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also said, आप अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि the evil shall always be attractive, but the good deeds shall always seem boring and weightless to many eyes. ये एक और नबी अलैहिस्सलाम ने हदायत का हीरा अता फरमाया कि the evil shall always be attractive to many eyes, मीनिंग फरमाया कि there always be, कशिश गुनाह में, फरमाया कि बहुत सारी आँखों के लिए गुनाह में, बुराई में बहुत अट्रैक्टिवनेस, कशिश होगी, ये ऐसा होगा, ऐसा है और होगा। इसलिए अगर तुम इसलिए गुनाह और नाफरमानी की तरफ जा रहे हो, उसमें कशिश है, तो जान लो कि बुराई में, गुनाह में लज्जत और कशिश वो मौजूद है। The evil shall always be attractive, उसमें बड़ी अट्रैक्शन होगी। The good deed shall always seem boring and weightless to many eyes. वो नेक अमाल फरमाया कि ये भारी और बेवज़न और कुछ लज्जत भी नहीं, बल्कि यानी जैसे बोरिंग लगते हैं कि भाई कुछ उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, कोई ज़ाहिरी तौर पर कोई लज्जत, वो इस तरह लगेंगे। तो अगर तुम इसलिए ही नेक अमल करो कि तुम्हें मज़ा, लुत्फ़ और ये चीज़ें अट्रैक्टिव लगें,
तो ऐसा नहीं होता बाज़ दफ़ा जब तक तज़किया ना हो जाए, क्योंकि जब तज़किया नहीं हुआ तो उसने समझे सुर्ख ऐनक लगाई हुई है, उसको हर चीज़ सुर्ख नज़र आएगी। गुनाह जो है वो उसमें कशिश नज़र आएगी, और नेक अमाल में कोई कशिश नहीं बल्कि वो उसका दिल जो है वो नहीं करेगा करने को। तो ये रियलिटी है इन रिलेशन टू सम पीपल। सो पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स बिकम ईजियर फॉर। जब आपको पता होगा कि मुझे नेकी में लज्जत नहीं आनी, मुझे भारी लगेगी, बेवजन कोई फ़ायदा ज़ाहिरी तौर पर नहीं नज़र आएगा, लेकिन मैंने करनी है, तो फिर बंदा कर गुजरेगा अल्लाह के लिए। क्योंकि जो कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा, मेरा दिल ही नहीं लग रहा, मुझे पर कोई कैफियत ही नहीं आ रही, मेरा जो है ये है वो है, तो फिर वो फिर नहीं कर सकेगा, वो भारी हो जाएगी। और गुनाह में फरमाया इन द ईवल शैल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, द ईवल शैल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव टू मैनी आइज। गुनाह में सामने चमक दमक लज्जत एन्जॉयमेंट होगी। तो अगर गुनाह इसलिए तुम कर रहे हो कि उनमें मज़ा और लुत्फ़ है, तो फिर तुम करते रहोगे, फिर कभी बंदा छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मज़ा कशिश तो उसमें रहनी है। तो गुनाह फिर इसलिए छोड़ देना कि भाई बावजूद है कि उनमें लज्जत कशिश, देयर इज़ अट्रैक्टिवनेस, बट जस्ट टू लीव दैम फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेक एंड फॉर योर बेटरमेंट ऑफ आखिरा, फिर बंदा कर सकता है। फिर फरमाया कि द वैल्यू ऑफ गुड डीड्स, द वैल्यू इज अनसीन एंड ओनली सीन आफ्टर डेथ। फरमाया इसलिए कि नेक अमाल की जो कदर और कीमत है वो तो गैब में है, वो तो पर्दे में है। गुनाह की जो the evil deeds seem tempting due to temporal pleasure which immediately one gets। दो चीज़ें हैं कि भाई जो गुनाह है उनका जो मज़ा जो कशिश पूरी है वो तो यहीं आपके सामने है, और नेकी की जो लज्जत और जो उसका फ़ायदा है वो अल्लाह ने पर्दे में रख दिया, गैब में रख दिया। ये नहीं कि उसमें है नहीं है, नेकी में ही लज्जत है, नेकी में ही कशिश है, लेकिन हमारी नज़र ही वहाँ तक नहीं पहुँचती। वी कांट सी इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज़ अ फ्रूट लेकिन वो जहर है उस फ्रूट में, बट आउटवर्डली यू सी द कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इज स्मेलिंग ब्यूटीफुल, इट्स वेरी टेस्टी, तो वो तो आपको सामने नज़र आ रही, लज्जत भी कलर भी, बट द पॉइजन इज हिडन इनसाइड। उसका जो जहर है वो तो अंदर छुपा हुआ है, तो आपको लगेगा। नेकी जो है वो इट सीम्स बोरिंग, एक चीज़ गोली पड़ी हुई है, वन टैबलेट विच इज़ जस्ट लुकिंग अ ब्लैक और ब्राउन स्मॉल टैबलेट, बट इट हैज़ द न्यूट्रिएंट्स, इट हैज़ द शिफा इन इट, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही, वो तो अंदर है। वो तो जो खाएगा, पर्सन इज गोइंग टू ईट, ही इज गोइंग टू देन सी इट आफ्टर। तो इसी तरह जो है गुनाह है कि वो उसमें कशिश, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मफहूम है कि द वैल्यू ऑफ गुड डीड्स इज अनसीन। नेक अमाल की कीमत वो नज़र नहीं आ रही। अभी आप दाढ़ी रखने की कदर कीमत, सुन्नत पे चलने की, नमाज पढ़ने की, ये अभी फजर की नमाज पढ़ी, ये गैब में है, हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जितनी गुनाह की चीज़ें हैं उनकी जितनी लज्जत जो मज़ा है वो सामने कैश सामने होता है। तो इसलिए बंदा जो है, तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया द इविल डीड्स सीम टेम्पटिंग ड्यू टू टेम्परल प्लेजर्स विच शैल लास्ट नो मोर देन अ सेकंड इन दिस लाइफ। मैं वो जल्दी गुजर जाते हैं। तो तुम क्या करो? सो व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड डू, फरमाया सो बी पेशेंट, सब्र करो, रोको अपने आप को, एंड कंटिन्यू टू डिफीट शैतान until you reach my kingdom in the hereafter। हमें शैतान के खिलाफ जो है तुम सब्र करो
और उसकी चमक दमक में ना आओ यहाँ तक कि तुम मुझ तक मेरी बादशाहत में, मेरे मुल्क में पहुँच जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क क्या है? आज जन्नत जो है आखिरत में आप अलैहिस्सलाम का जो मुल्क है, बादशाहत है। फरमाया मेरे बादशाहत में तुम जो है पहुँचाओगे, फिर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ आपको, then you are going to see the value of good deeds there. And the reality of sin जो आपको यहाँ बड़ा पुरकशिश नज़र आ रहा था, अब आपको नज़र आएगा वो जहन्नम की शक्ल में और सांप और बिच्छू और अजाब की शक्ल में। फिर लेकिन फिर देर हो गई, फिर बंदा वापस आके बदल नहीं सकता। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये यानी नसीहत फरमाई कि भाई ये रियलिटी है। भाई एक तो भाई जो गलती हो जाए, गुनाह हो गया, अब गुनाह तो वापस नहीं जा सकता वो तो हो गया, अब तो तौबा ही हो सकती है। लेकिन तौबा से फिर जो है सबक सीखो, यू लर्न लेसन फ्रॉम दैट सिन, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, टू अवॉइड इट इंडिविजुअल। तो अब ये सीख लो। और दूसरा ये, डोंट be in this mindset wherever you see attractiveness you go towards it, because then the sin will always be attractive to many eyes until if a person is purified, जब बंदे का तज़किया हो जाता है, then he starts to see reality. औलिया and सालिहीन they see reality, उनको नेकी में लज्जत नज़र आती है, नेकी में फ़ायदा नज़र आता है, गुनाह में नुकसान नज़र आता है। लेकिन टू रीच दैट स्टेज यू हैव टू प्यूरिफाई यूर सेल्फ, तज़किया हो जाए बंदे का कि बिकॉज द इफ यू आर नॉट प्यूरिफाइड देन यू आर कंटामिनेटेड एंड द रिजल्ट विच यू आर गोइंग टू हैव इज एक्चुअली नॉट विल नॉट बी प्योर। तो एक तो ये फरमाया, और फिर साथ ये फरमाया कि ये जो शब बारात अभी गुजरी है या शाबान का महीना आता है हर साल, फरमाया कि बारात, लैलतुल बरात, बरात मीन्स फ्रीडम, बरात मीन्स फिर जैसे कहते हैं मैं बरी हूँ, आई एम फ्री फ्रॉम यू, आई एम फ्री फ्रॉम यू, आई एम नथिंग टू डू विद यू। फरमाया बारात इज टू डिक्लेयर फ्रीडम। यस, ये सच है कि रात वो फ्रीडम की रात है, लैलतुल बरात है, आज़ादी की रात का मतलब है द नाइट ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हाट डज लैलतुल बरात मीन? द नाइट ऑफ इंडिपेंडेंस, द नाइट ऑफ फ्रीडम। अब हम कभी ये भी सोचा वो किस से फ्रीडम है? दैट व्हाट इज फ्रीडम फ्रॉम? फरमाया इज टू डिक्लेयर फ्रीडम फ्रॉम ईवल, एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल हु बिकम फ्री। फरमाया इसमें सब लोग फ्री हो जाते हैं, पीपल बिकम फ्री। वन कैटेगरी इज द हु आर द ओबीडिएंट एंड रिपेंटेंट पीपल, दे बिकम फ्री as well, and the disobedient becomes free as well. नेक लोग भी आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, ताइब भी और गुनाहगार फासिक फाजर भी हो जाते हैं। बहुत अच्छी फ्रीडम इन देयर ओन वेज। द पायस बिकम फ्री फ्रॉम द डिजायर्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड सिंस। मतलब ये है कि जो नेक लोग किससे फ्री होते हैं? वो जो गुनाह, जो दुनिया की लज्जतें, दुनिया की मोहब्बत, उससे वो आज़ाद हो जाते हैं। वो they even declare independence from these things, that we have become free, and which there is little bit left, they even actually abandon that. उनके लिए बारात ये होती है लैलतों के, आज बरी हो गए हम जो थोड़ा बहुत कमी होता है उससे भी। और जो गुनाहगार हैं, the disobedient who don't want to repent, Prophet ﷺ mentioned, they become free and away. वो किससे फ्री होते हैं? Who do they become free from? Who are not paying any attention or anything. They become free and away from the mercy and rahmah of Allah. वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं।
वो लानत में चले जाते हैं। लानत का मतलब ही ये होता है कि अल्लाह की रहमत से दूर हो गया बंदा। कहते हैं फलां पे लानत, क्या मतलब? लाना मीन्स person was deprived of the mercy of Allah, meaning that he is not going to get guidance, nor he is going to get any sins forgiven as long as he is in the lana of Allah subhanahu wa ta'ala. क्योंकि गुनाह तो माफ़ होने से अब इसके ये परेशानी भी आए, मुसीबत भी आए, इसके गुनाह माफ़ नहीं होने, क्योंकि इस पे लानत हो गई है। जब तक कि वो फिर अपना वापस लौटे ना, कम अज़ कम उन अमाल को छोड़े जिन पर लानत है, तो फिर उसको बीमारी, उसकी परेशानी गुनाह माफ़ कराती है, हदायत उसको मिलना। लेकिन जिस पर लानत हो, जैसे शैतान पर हो गई है, अब क्यों नहीं उसको हदायत मिल रही? because अल्लाह सुब्हानहू तआला से लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुझ पर लानत है। इसका मतलब है कि वो परेशान भी हो, जो भी उसके परेशान, लेकिन उसका कोई गुनाह माफ़ नहीं होना, उसका कोई दर्जा बुलंद नहीं होना, इज नथिंग विल लानत। इसी तरह कई अमाल की लानत होती है। एक उनमें है कि बद नज़री करना, गलत नज़र से देखना, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बंदे पर ये जो है, ये यानी वो मलून है, वो देखने वाला और दिखाने वाला। The one who looks and one who is looked upon, मतलब जो मर्द है, औरत है, वो दूसरों को इस तरह दिखाता है अपने आप को, वो भी उस पर भी लानत, और देखने वाले पर भी जो है वो ये बंदे इसलिए महरूम, वो उनका बड़ा मुश्किल होता है मामला, that they become towards guidance। तो इस तरह की चीज़ तो देखें, हमें तो ये पता ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि लैलतुल बरात, ये बारात जो है बरी हो गए, फ्री हो गए, कुछ लोग गुनाहों से और कुछ लोग अल्लाह की रहमत से फ्री हो गए। क्योंकि तो जिंदगियां, चलो उस दिन फैसले होते हैं, टू द एंजल्स इट्स गिवन द डिसीजंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वो तो होता ही है, दैट इज द, बट बिकॉज ऑफ दैट नो वन बिकम सिनफुल अवे फ्रॉम अल्लाह। मतलब किसी की मौत आ जानी है तो इस वजह से वो अल्लाह के से दूर नहीं हो जाता। किसी को रिज्क ज़्यादा मिलना है, इस वजह से वो अल्लाह के करीब, वो तो फैसले होते अल्लाह के, उस पर बंदू का कोई गुनाह, कोई कसूर उस तरह नहीं। लेकिन बंदू का नुकसान या फ़ायदा, द बेनिफिट और द हार्म ऑफ द पर्सन इज व्हाट इंटेंशनली दे आर डूइंग दैट नाइट। तो अब कई बंदे अल्लाह की रहमत से निकल गए दूर, और कई गुनाहों से निकल गए दूर अल्लाह की नाफरमानी से। They both achieve freedom in their own minds. As you see upon this world, it is the freedom of choice. फरमाया ये दोनों ग्रुपों को आज़ादी में दे, have freedom। दुनिया में देखो यही नज़र आएगा तुम्हें, you will see this evil corruption, जो गलत चीज़ें तुम देख, ये उसी फ्रीडम का ही असर है, freedom of choice, and they become free from the mercy of Allah। और जो those people who are pious and obedient, they have become free from the sins। My freedom is what Allah has given upon this world, freedom to choose what you love most। This is what Allah subhanahu wa ta'ala has given you on this face of the earth। कि अर्थ पर जो आपको मिला है आलम अरवाह में और बात थी, आलम बरज़ख और कब्र, और जब वो तो रिजल्ट है, फ्रीडम असल में यही है on this face of the earth। Freedom is what Allah has given upon this world. Freedom is to choose what you love most। फरमाया this month is attributed to me। ये महीना, so this month is attributed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। A month which entails you to become even closer to me। इसका मतलब क्या होगा कि ये महीना हजूर अलैहिस्सलाम का है, तो हजूर अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब हो जो, ये मतलब है इसका। हमने तो कभी समझा ही नहीं भाई शाबान महीना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो क्या मतलब है इसका? The month if is attributed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the message is that you become more closer to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this month। सीधी सी बात है, कभी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है
तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब हो और ज़्यादा करीब आ जाओ। टू चूज़ व्हाट यू डिज़ायर विल डिज़ायर मोस्ट, जो तुम चाहते हो, मुझे चाहते हो तो मेरे करीब हो जाओ। फरमाया द मंथ ऑफ शाबान इज़ माई मंथ, मैं ये महीना मेरा महीना है। एंड द नाइट ऑफ बारात इज़ लाइक द हार्ट, इज़ लाइक माई हार्ट। फरमाया ये जो रात है इसमें ये दिल है, इस महीने का ये गोया मेरा दिल है इस रात। दिस वॉज द नाइट व्हेन द लव and the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was distributed to the ummah। मैं यही रात है कि जिस दिन रहमतें और चीज़ें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़यूज़ात जो है वो तकसीम किए जाते हैं उम्मत पर। Each and every person is given a portion of the fairs of my heart। It has become the cup of blessing and rahmah, and for some it has been broken many times with their disobedient way। It is as though that everyone receives a cup, a jug, एक जग है या एक कप है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको मिल रहा है, and उसमें फैज़ हर चीज़ इकट्ठी हो सकती है। But फरमाया कि many people it has been broken many times, लेकिन कईयों ने नाफरमानियों करके उसको तोड़ दिया, उसका जो रहमत का जो पानी जो अल्लाह के कुर्ब का है वो बह गया है। It has actually gone। Each and every one of you were given this cup of my heart to accumulate blessing। ये तो तुम्हें दिया गया था रहमतें समेटने के लिए, this cup, to accumulate, to get together blessings in this night, and fills your heart with obedience, but many have yet to fill their hearts and some have filled with darkness। मैंने तो फैज़ दिया, कप दिया लोगों का दिल, लेकिन many of the people they have filled it with darkness, उस कप को, और उसमें टूटा हुआ है, no light in there। There are many who are day and night breaking the cup of my heart। मेरा तोहफा है लैलतुल बारात, और जो है इसमें कई लोग जो हैं वो रात दिन इसको तोड़ रहे हैं बजाय उससे फ़ायदा हासिल करने। मेरे महीने को वो गंदा का, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम month they are actually contaminating with the evil। तो नबी अलैहिस्सलाम की कोई भी चीज़ है तो उसका अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। लेकिन आप मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद का रिस्पेक्ट है, देयर इज रिस्पेक्ट फॉर द मॉस्क। Similarly, when something is attributed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you should become more conscious कि अब ये भाई ये नालैन शरीफ है ना नबी अलैहि सलाम का, या ये मामा शरीफ है, ये कुरान है हज़रत अलैहि सलाम का, ये शहर है, you should become more conscious। तो अब महीना उनका फरमा रहे हैं ये मेरा महीना है, तो अब इस महीने में फिर बहुत ख्याल करना पड़ता है। फरमाया each sin is the breaking of my heart। One's heart have become broken like fragments of sand, making it difficult to amend the cup of one's heart। मैं बहुत सारे लोगों ने इसको गुनाह करके गोया इस कप को जो मैंने तोहफा दिया इसको तोड़ रहे हैं, और तोड़ के वो उन्होंने अपने दिल के कप को चूर चूर, यानी लाइक फ्रैगमेंट्स एंड ग्रेन्स ऑफ सैंड, वो बिल्कुल चिकना चूर अपने शीशे की तरह बना दिया। दिस मंथ इज द मंथ ऑफ अमेंडिंग वन्स रिलेशनशिप विद मी, विद रसूलुल्लाह, यानी विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड रीबिल्डिंग ईच ग्लास टू बिल्ड वन्स हार्ट। मैं ये महीना असल में यही इसीलिए है कि मेरे साथ तुम्हारा तल्लक ठीक हो जाए और तुम ये जो शीशे टूटे हुए हैं इनको जो है वो जोड़ो। द मंथ ऑफ शाबान इज अमेंडिंग द रिलेशनशिप
and the month of Ramadan is strengthening the relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. शाबान इज़ अ मैन, शाबान जो है ये नुकसान पूरा करने का महीना है, क्योंकि जो नुकसान हो गया है वो पूरा कर लो, और रमज़ान जो है फिर वो अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने का महीना. इन अदर वर्ड्स कि मंथ ऑफ शाबान इज़ टू strengthen your relationship with the Prophet ﷺ, and Ramadan is to strengthen your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. To amend and reconnect your heart is to build the heart of the cup which accumulates blessings. फरमाया कि ये जो कैसे amend करो, how are you going to amend, ये किस तरह इसको बनाओगे इस कप को. अब ये तो बता दिया आपको कि that it is the example is given is of the cup of the heart. तो वो टूटा हुआ है, हमारा भी टूटा हुआ है, तो हम कैसे उसको जोड़ें. फरमाया वो ऐसे, many hearts are broken with blessings falling through. फरमाया ये ऐसे कप है तो उसका नीचे ही हिस्सा कोई नहीं, साइड वाले हिस्सा कोई नहीं, तो जो भी चीज़ डालोगे, whatever you going to put is going to pour through, is going to actually flow through. अब ये कप है, उसका नीचे बेस ही कोई नहीं, तो उसमें जो चीज़ डालेंगे वो नीचे चली जानी है. तो हमारे साथ ये हो रहा है, जो नेकी का हम कर रहे हैं वो अपना नीचे नीचे जा रही, ऊपर से नेकी डाल रहे हैं, वी आर pouring जूस, वो बस नीचे अपना जा रहा है. Blessings are falling through. Many hearts are in darkness without the sealing of cup of one's heart. वो सील ही नहीं हुआ. तो क्या नसीहत है. Now the solution, अब इलाज का बयान हो रहा है. फरमाया firstly one needs 4 sides to build the cup of his heart. फरमाया सबसे पहले उसको 4 साइडें चाहिए, 4 तरफ, ये भी जैसे ये मकान की 4 दीवारी होती है, 4 दीवारें, 4 sides to build the jug or the cup or the vessel. उसकी 4 साइडें हैं. Each side represents the 4 conditions of the path to Allah subhanahu wa ta'ala. उस कप की 4 साइडें क्या हैं? What are the 4 sides of the cup? They are like the 4 conditions: अकीदा, फ़िक़ा, तौबा, मुजाहिदा. वो सबसे पहले तो ये है the body of the cup. उसकी 4 साइडें उस वेसल की, उस जग की, उस पैमाने की वो हैं. Each side represents the 4 conditions. If one side is missing, then the cup of his heart cannot be formed, it shall collapse. इसलिए उनको 4 शराइत कहते हैं कि एक साइड नहीं होगी तो बिल्डिंग जो है और उसमें कोई चीज़ रह नहीं सकती. One then needs to build the base of the cup. देखो ना, 4 साइडें बना ली आपने, which are the 4 conditions. Now you need the bottom part, the base of the cup, so that anything which is poured in, it stays there, वो वहीं रहे. What is this? This is the first stage of purification. ये तज़किया नफ्स की जो है पहली स्टेज है. To block darkness entering into the heart, and without the base being strong, the blessings shall fall and darkness shall enter. फरमाया कि ये उसका जो कप है, उसका जो बेस है, वो ये 7 अज़ा का तज़किया फर्स्ट स्टेज है. क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप जूस डालेंगे, वाटर, तो वो नीचे फ्लो करेगा. That's what's happening to those people who do virtues, who put virtues, but 7 अज़ा का तज़किया नहीं, वो सारी नीचे जा रही हैं नेकियां. The virtues, the noor, the light of the good deeds is present. Rather the darkness is entering. अंधेरा आ रहा है उनके अंदर. तो आप समझे, ये शब बारात जो है, ये इस या शाबान का महीना, ये महीना इसलिए कि ये आपका शुरू हो, कि पहले कप बन जाए, फिर उसका बेस बन जाए. Many people have a cup which has no base. तो बहुत सारे मुसलमानों का कप है, they have a cup but there is no base in there. तो तज़किया 7 अज़ा फर्स्ट स्टेज नहीं, it's like having no base. The blessings enter from the above
but fails to remain there. Darkness enters from below. Due to no base of protection, it sinks the heart to the pits of darkness. फरमाया नेकी तो ऊपर से बंदा डालता है और वो तो नीचे चली जाती है ज़ाया, और नीचे से क्योंकि बेस नहीं है और गंदगी और जुल्मत वो कप में दाखिल हो रही। क्योंकि आप जब कप ऐसे रख देंगे आप मिट्टी पर तो नीचे से तो गंदगी कीड़े आएंगे, ऊपर से जो डालेंगे वो भी ज़ाया हो जाएगी और गलत चीज़ें भी उसके अंदर आएंगी। Now one has formed the body of the cup by building the base, by purifying his body and blocking the darkness from entering the heart of his cup. Now one should seal each side with the glue. अब देखें 4 चीज़ें होगी तो उनको जोड़ना भी है ना, the 4 walls of the cup. Now you should connect them, seal them with the glue of remembrance. This represents the second stage of the path, which is the purification of the mind. Yani the 4 sides, they are the conditions, but to seal the base is the first stage, and then to seal that, mind bhi yahi karta hai na, that everything seeps through the mind to the organs. And if 4 चीज़ें तो आपने रख ली, the 4 sides, but they are not glued together, तो फिर भी कुछ ना कुछ गंदगी इधर उधर से उसमें आ सकती है, कुछ ज़ाया हो जाएगी. But if it is protected and sealed well, nothing goes in as such which you don't want, and nothing goes out. यानी बुराई जो है वो अंदर आएगी नहीं और नेकी बाहर से निकलेगी नहीं. So now one should seal each side with glue of remembrance. Huduri is the second stage of the path, which is the purification of the mind. The stronger the thought of remembrance of Allah, the greater the seal of protection against shaitan, whispers of shaitan. यानी फरमाया जितना ज़्यादा वो सील सख्त होगी उतनी ही ज़्यादा जो है शैतान से हिफाजत होगी. His entire cup of his heart is the remembrance of Allah. It is sealed with the bound of remembrance of meeting with Lord. यानी वो अब उसका जो सील हो गया, अब वो वहाँ कोई चीज़ नहीं दाखिल हो रही. अब क्या होगा? Now one is filled with the waters of goodness. अब उसको अंदर खैर और भलाई का पानी डाले उसके अंदर, उस कप, दिल के कप में. कैसे? Adopting the characteristics of the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हजूर अलैहि सल्लम की सुन्नतों को जो अमल करेगा उस कप में वो अल्लाह के कुर्ब का पानी डाल रहा है, इखलास हासिल कर रहा है, sincerity, humbleness और शुक्र, सब्र, all these things. This represents the third stage of the path, purification. क्योंकि third stage में यही होता है कि बुरे अखलाक ख़त्म और अच्छे अखलाक जो है, जैसे इखलास है, सब्र है, शुक्र है, यही हासिल होता है. ये पानी है. तो पहले तो हो गया ना कप, 4 sides, वो होगी 4 conditions. The base हो गया the first stage, and the sealing of these 4 sides and with glue, ये second stage, or baking the side. And the third stage is put the virtues in there. Jealousy, self-likeness, are like acid which eats up inside one's heart. ये acid जिसका तेजाब होता है किसी चीज़ में डाल दे वो ख़त्म कर देता है slowly. Acidity आ जाए, it actually finishes that thing, deteriorates the beauty or even the reality of many materials. From jealousy and all these evil traits are like acid. If one pours darkness and develops these traits, then this entire body and heart shall collapse and melt from this poison. ये एसिड, ये तेज़ाब, ये जहर है, अगर ये अंदर होगा तो बावजूद है कि वो 4 walls भी हैं, things हैं, it's still going to destroy it. अब ये भी खतरा है. This is the example of shaitan. He did not treat the acid of darkness which slowly ate away his iman. Left untreated can endanger your life of iman
it can destroy the cup of one's heart completely. शैतान के साथ यही हुआ है। वो नेकी तो उसके पास बहुत थी, कंडीशंस भी उसने फुलफिल की हुई थी, 4 walls भी थी, बेस भी था, सब कुछ, but in that there was this acid of kibr and jealousy. अब उसने आहिस्ता 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 उसको पता भी नहीं चला, he didn't notice. मतलब अगर उसको पता होता, जानते पूछते कैसे वो अपना नुकसान करता इतना बड़ा, मतलब वो तो समय मैं ठीक ही हूँ, बट स्लोली दिस एसिड विच रिमेन्ड इन, ये खाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल भी दी हसद के बारे में, फरमाया ये भाई नेकियों को ऐसे खाता जैसे लकड़ी को आग। फरमाया द जेलसी ईट्स वर्च्यूज गुड डीड्स लाइक फायर ईट्स वुड। इसका मतलब है दीज थिंग्स दे ईट अप थिंग्स। तो थर्ड स्टेज में जैसे फरमा रहे हैं कि ये है कि दैट पुट द गुड waters of good qualities in and to remove those acids. The next stage is the fourth stage of purification, which is enlightenment. This is what shapes the entire body inwardly and outwardly. It is the energy which forms the heart of the cup. फरमाया कि ये जो चौथी स्टेज है एनलाइटनमेंट की, ये उस कप की बाहर से अंदर से ताकत और ख़ूबसूरती, उसका चमकना धमकना और उसका पानी और उसके अंदर जो चीज़ है उसकी खुशबू, ये सारी चीज़ें। नाउ इट फॉर्म्स द शेप ऑफ अ ट्रू वेसल, अ ट्रू बिलीवर। अब ये सही उसका दिल का कप बन गया है, अब वो सही ईमान वाला बन गया है। इनवर्डली आउटवर्डली द हार्ट ऑफ द कप इज़ इल्यूमिनेटेड, वो रोशन हो जाता है, attracting all the beings to the righteous path and to taste the drink of paradise. फरमाया अब वो ऐसा बंदा बन जाता है कि वो दूसरे भी उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं, कि वो रोशन हो जाता है उसका अंदर उसका कप, कि वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है विद राइटियसनेस। उसकी वजह से और हज़ारों सैकड़ों लोग नेकी की तरफ आते हैं। लेकिन कब आएंगे कि जब उसका अपना नेकी की खुशबू नेक होगी, अंदर नेक होगा। One's body begins flow with the drink of paradise. फरमाया कि बस उसके जिस्म में फिर समझे कि जन्नत के चश्मे जारी होते हैं, यानी नेकी के चश्मे। वो सब्र शुक्र, किसी को गाली नहीं देता, दुआएं देता है, नसीहत करता है, और मतलब है बेहतरी चाहता है, और जो है अल्लाह की याद। आउटवर्डली इट परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ 24 hours रिमेम्बरेंस। जाहिर से तो वो अल्लाह पाक को याद कर रहा होता है। एंड it attracts others to the righteous path. It attracts whoever see it to be in the remembrance of Allah. कि अगर बंदा कोई सही नज़रों से देखे, उसके पास बैठे, तो वो भी नेकी की तरफ माइल हो जाए। क्यों? By just looking and sohbah. इसलिए कहते हैं the sohbah of the righteous makes you righteous and pious. उसके बाद क्या करे? After that what one should do? Now one should stand with the heart open in the presence of Allah and allow the showers of blessing to fill the cup of the heart. तो मैं अब वो क्या करे? अब वो बस अल्लाह की हुजूरी में खड़ा हो जाए, उसका दिल को यानी अल्लाह की हुजूर ऐसे बस रख दे, और बस अल्लाह जो उसमें डालना चाहे अल्लाह डालता रहेगा, डालता रहेगा। To receive the showers and blessing is to be in the company of the righteous. कैसे ये मिलेगी? फरमाया औलिया और सालिहीन की सोहबत में रहोगे तज़किये के बाद, तो तुम में नेकी और चश्मे और नेकी का फैज़ आना शुरू हो जाएगा। Take your hearts wherever they go and you shall always be filled with blessing. फरमाया अपने दिल को, कप को उनके साथ साथ रखो जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, तो तुम्हारा वो आता रहेगा फैज़ जो है उस वक्त। अब फैज़ क्यों नहीं आता? क्योंकि खुद ब्लॉक किया हो किसी का, तो कप भी जो है वो नीचे से खाली है, तो फैज़ आएगा भी तो उसका असर नहीं रहेगा। ये नहीं कि फैज़ नहीं आ रहा, the blessings are coming into the cup but they are seeping out completely. अब वो कहता है मैं तो नेक लोगों के साथ बैठता हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा, टेम्परेरी फ़ायदा। कई लोग कहते हैं ना जी, जब सोहबत में रहते हैं तो बड़ा फ़ायदा होता है, और जब चले जाते हैं तो then we don't feel, we don't have that kind of benefit. तो वो answer is very 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 clear that when they are in their company, because the faiz is coming continuously in the cup, they are feeling the cup is filled. क्योंकि फैज़ जो आ रहा है
मीनिंग द रिवर इज फ्लोइंग एंड द कप इज हियर, तो पानी आ रहा है रिवर का, तो कप तो भरा ही हुआ होगा ना। लेकिन जब व्हेन यू आर गोइंग टू टेक दिस वेसल अवे, जब नहर से वो कप उठा लोगे तो वो गली में जाके तो हर चीज़ नीचे गिर जानी है, फिर आपने कहना खाली हो गया। तो फिर कहते पता नहीं क्यों वो इस तरह होता है। वो इसीलिए कि भाई वो बेस मजबूत नहीं। तो बेस मजबूत हो, उसकी चार दीवारें ठीक हों, ग्लू लगी हो, तो फिर जो आएगा वो रहेगा बीच में। इट्स गोइंग टू स्टे लॉन्ग टाइम देयर। हमारे साथ यही हो रहा है, ड्रामा शैतान खेल रहा है। जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ये आप अलैहिस्सलाम ने शब बारात की ये मैसेज है गाइडेंस, हमने उसको मजाक बनाया हुआ है। शब बारात आ रही है, भाई किसी का पत्ता उतर गया, किसी का वो तो है, लेकिन उसकी वजह से गुनाहगार नहीं होता। इस वजह से गुनाहगार या नेक बनना है इंसान। अब फरमाया कि वो जहाँ भी जाएगा अल्लाह की कुर्ब और औलिया अल्लाह से, सब औलिया अल्लाह से फैज़ उसको मिलेगा और वो रहेगा फैज़। सो फिर फरमाया क्या, टू रिसीव शावर्स एंड ब्लेसिंग। अब क्या करे, वन शुड देन कवर हिज कप विद द लिड। अब उसको वो अपने जग को ऊपर जो है, जब फारग हो जाए जब फैज़ से, फिर उसको ऊपर लिड भी, लिड ऑफ व्हाट, cover his cup with the lid of the 4 objectives। वो जो 4 objectives है वो उसके lid की तरह है, वो आ जाते हैं, फिर फैज़ बाहर नहीं निकलेगा। Because he is compassionate upon creation, he is giving preference to Allah, giving preference to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, being in the state of presence। अब वो जो whatever is inside is not going to get out। अब तो lid भी आ गई है ना ऊपर, अब कैसे वो निकलेगा। नीचे base है, underneath is a strong base, above it is a lid, walls are there with the glue। So whatever faiz, iman, good deeds are coming in, they are not getting out। ये फिर वली बनता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, because nothing goes out, only good things come in, darkness does not come in and good things do not seep away। तो अब ये तो बनेगा ही अल्लाह का दोस्त, slowly slowly। His entire body shall be covered with the aim of fulfilling the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, his beloved sallallahu alaihi wasallam, and the creation। He keeps in complete presence of his Lord। He becomes mindful with every thought which enters his cup and all that flows outside and inside। His entire self is in the presence of Allah। This is the drink which people will taste on the day of judgment, the cup of their heart। फरमाया अपने ही कप में जो ड्रिंक बनाई हुई है ना, इसी को पीना है क़यामत वाले दिन और जहन्नम में। वो यहीं से बंदा लेके जा रहा है। अगर इस तरह की नेकी का कप और दिल बना लिया तो यही सारा वो आप वही फिर जन्नती फिर खाने और जन्नती शरबत वो यही चीज़ें, और ये हसद बुग़्ज़ से भरा हुआ तो यही पीना है वही। The righteous will taste the drink of paradise, the taste of beauty unlike the other। The disobedience will taste the drink of fire from the cup of their heart, which he had contaminated with darkness, which has now fueled the fire। ये उसके दिल ही ने आग लगाई हुई है जहन्नम में। फरमाया the ultimate aim is that Allah is pleased with the cup of one's heart, and the next stage is to save others who have broken their cups and are thirsty for the remembrance of Allah। इससे अगला दर्जा ये है कि जब तुम इधर पहुंच जाओ, फिर जो जिन लोगों के कप टूटे हुए हैं उनको दावत दो कि तुम भी जोड़ लो कप, वो तुम भी अपने दिलों को जोड़ लो। इसको जो जुड़ा हुआ दिल है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कल्बे सलीम, सलीम सालिम दिल। अल्लाह ने कुरान जी ने फरमाया यौम ला यनफ़उ मालुन व बनून, उस दिन जिस दिन कोई बेटे औलाद माल काम नहीं आएगा कुछ भी, इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, हाँ मगर जो एक सलीम दिल ले आया बस वही काम आएगा, यही सलीम दिल, कल्बे सलीम। दिस इज़ व्हाट इज़ द साउंड हार्ट। इस वहीं द साउंड हार्ट ले आया, ये है हार्ट को साउंड बनाने का तरीका। यहाँ तो फिजिकली तो आप देखें ना, अंदर से थोड़ी सी अगर चर्बी आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाए, बंदा मर जाता है। और जिसकी हार्ट की वॉल्स भी डैमेज हों, आर्टरीज भी डैमेज हों, नीचे ब्लड कहीं और जा रहा हो, वो क्या हाल होगा उस बंदे का, वो तो मरेगा ही मरेगा।
So much worse is happening. His heart is built like, फिर क्या होता है फरमाया, his heart is built like the tank which is in constant supply, never becoming thirsty for following Allah. उसका हार्ट पे टैंक की तरह बन जाता है, वो कांस्टेंट सप्लाई मिल रही है, कभी भी वो अल्लाह को इताअत करता थकता नहीं. But he uses it to save others and teach them to build the cup of their heart. वो अपना पानी फिर दूसरों के में डालता है. His heart becomes the river of remembrance. वो एक पूरा दरिया बन जाता है उसका दिल, which he invites others to. दूसरों के आओ तुम भी पियो, तुम भी पानी पियो और अपने प्याले ठीक करके लेके आओ. All his life he lives and awaits for the call to return to his Lord. बस उसके बाद वो यही है, वो इंतज़ार कर रहे होते कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए मैं चला जाऊँ, और अब उसका मकसद कोई नहीं होता. वो जो मेहनत सब कुछ कर रहा होता है वो समझे कि वो अल्लाह के हुक्म, for the command of Allah to fulfill his purpose. But when he reaches here, all he is doing is he is waiting for the call of Allah. Like Rasulullah, when he fulfilled his mission, he was waiting for the call of Allah. Allah ki call आई आप चले तशरीफ ले गए. That's how, that is a model for us as well. We fulfill our purpose of this earth, बस उसके बाद रहने का यहाँ फ़ायदा नहीं, मकसद नहीं. फिर वो कहता है कि अल्लाह जब तू ले जाएगा वही मेरे लिए बेहतर है, मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ. Until that I will worship and I will convey the message. बस वो इंतज़ार कर रहा होता है कब भाई, आज इज़राइल आ रहा है, कल आ रहा है, शाम आ रहा है. जब हमारे लोग सोचते हैं शाम क्या करेंगे, सुबह क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एवरी वन हैज़ देयर ओन कंसर्न, क्या होगा 10 साल बाद क्या होगा. अल्लाह का वली यही सोचते हैं भाई आज सुबह इज़राइल आएगा या शाम को आएगा. शाम को दिन को नहीं है, वो गुजर जाते हैं, वो कहते हैं शायद रात को आए. वो अपना काम करते जा रहे हैं, भाई चलो नहीं आ रहा जितना वक्त हम कर रहे हैं. फिर वो रात गुजर जाती है, फिर वो कहते हैं आज शायद दिन को आए. वो तो इंतज़ार में, दे आर एक्चुअली वेटिंग. बिकॉज आफ्टर दिस सेइंग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेड, आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आफ्टर द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया सबसे बड़े मेरे ज़िंदगी में इनाम, ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. After Rasulullah sallam blessing, the gift of death from Allah was my most greatest gift. Rasulullah sallam की बाद आप इतनी बड़ी नेमत थे और इतना इससे बड़ी नेमत नहीं. उसके बाद सबसे मेरे लिए बेहतरीन तोहफा मौत था, इससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की पसंद नहीं था. तो वो वक्त गुजारते, इसलिए उनका ऑब्जेक्टिव ही और हो जाता है, एम ही और हो जाता है. दे आर गोइंग फॉर एटर्नल किंगडम, हमेशा की जहान, हमेशा की जहां में वो जा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ. और फरमाया व्हाई इट वाज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, इट इज़ द रीयूनियन टू बी विद आवर बिलवड अल्लाह एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फरमाया ये रीयूनियन है, ये मिलना है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसा मिलना जिसके बाद जुदाई नहीं, नो सेपरेशन. This is the gift which one has loved and has long waited after the departure of Prophet sallallahu alaihi wasallam. वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद मैं यही इंतज़ार कर रहा था कि कब ये तोहफा आएगा, और वो कितने साल बाद आया. फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, remember the days and nights are passing ever so quickly. फरमाया दिन और रात कितनी जल्दी गुजर रहे हैं, तुम देख रहे हो कितनी जल्दी गुजर रहे हैं. So one should spend much time as he can in the worship. जितना भी अल्लाह की इताअत में कर सको करो. So one can attain and keep more blessings in Ramadan. Ramadan is the month which you may accumulate more blessing. So one can use it throughout the year. रमज़ान ही में बंदा नेकियां तक़वा इकट्ठा कर सकता है, फिर वो इस्तेमाल करना होता है. To celebrate this month and night is to become free from sin and build the heart of one's cup. ये है शब बारात मनाने का तरीका. मैंने कभी इसका मनाना है कि भाई गुनाह से फ्री हो जाओ और वो अपना कप, दिल का कप बना लो, जिस तरह पहले कहा. दिस इज द ट्रू सेलिब्रेशन, दिस इज द ट्रू वेज. इट विल नॉट हैपन इन वन नाइट. फरमाया ये एक रात में नहीं होता, ये एक रात में वन नाइट ये इस तरह नहीं होगा. It will not happen in one night, but it is the start.
So do not give up the pleasure of Allah in one sitting, but put effort until your last breath. फरमाया ये एक रात में नहीं हो, लेकिन ये शुरू कर सकते हो तुम इस रात में शुरू, यू कैन बिगिन इन दिस नाइट। वो फरमाया गिव अप ना करना, अल्लाह को राजी करना, बेशक तुम्हारे चंद सांस ही क्यों, फिर भी कोशिश करते, कभी डिस्पेयर ना होना, यही तुम्हारा मकसद है। जब तक सांस है तुम कामयाब अल्लाह को राजी कर सकते हो। तो गुनाह में समुंदर में भी गर्क हो जाओ, फिर भी अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, ऊपर आने की कोशिश करो, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करे। Use the night wisely to return. We shall listen and respond to call of your hearts. Allah subhanahu wa ta'ala did respond to the call of the heart. Allah is so merciful in this month due to the month being attributed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह पाक इतने रहीम और इतनी रहमत इस महीने पे, इसकी वजह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। अल्लाह को तो हर उस चीज़ से प्यार है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत रखती है। It is such a month that entire life and death of beings for the coming year will be decided on this day and night. यानी इसी में मौत और ज़िंदगी के फैसले होते लोगों के। Due to my status and closeness, the people benefit on this night and the decision which Allah makes about their lives. What a great month for the decision to be made for those who truly repent. फरमाया इस दिन फैसले होते हैं, इशारा कर रहे हैं कि इस दिन फैसले, काश तुम भी फैसला कर लो अल्लाह को राज़ी करने का। अल्लाह तो मौत ज़िंदगी के रिज़्क़ के फैसले कर रहा है, तुम अल्लाह को राज़ी करने का फैसला करो, तुम भी फैसला करो, ये फैसले की रात है। One should appreciate the blessings of his Lord and submit to the one who shall always provide. अल्लाह की नेमतों की कदर करो और उसी के साथ लगे रहो, यानी अल्लाह की ज़ात के साथ, कि जिसने हमेशा के लिए तुम्हें वो दे सकता है, ज़िंदगी में भी तुम्हें दे सकता है, मौत में भी दे सकता है, कब्र में भी, हशर में भी, जन्नत में भी। दुनिया वाले कितने हैं जो तुम्हें दे सकते हैं, दुनिया में ही नहीं दे सकते, कब्र में तो क्या देंगे वो, वहाँ प्रोवाइड, वहाँ रिज्क नहीं पहुँचा सकते वो, दे कांट सेंड रिज्क देयर। हशर में क्या देंगे आप, ख़त्म, उनकी पहुँच ही नहीं है। जन्नत में क्या ये दे सकते, वो तो उनकी पहुँच ही नहीं है। सो यू सबमिट फरमाया एंड क्लिंग टू द वन हु शैल ऑलवेज प्रोवाइड एंड कैन प्रोवाइड। So be mindful of the presence of our Lord. May you take this as the words to freeing your hearts to the remembrance of Allah, where you shall be free from all disobedience. यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से, अल्लाह की नाराज़गी से बच जाएं और जो है अपना कामयाब हो जाएं। तो ये शब बरात में मैसेज असल में तो देना था, बट बिकॉज आई वॉज नॉट हियर, तो चलो आपने सुन लिया, अगले साल आएंगे तो फिर ये देंगे, हर साल दोहराना। बट ये है असल पैगाम तुम्हें, जब ये शब बरात ये है कि दैट यू बिकम फ्री एंड ऑल्सो यू स्टार्ट बिल्डिंग द कप, जो अपना दिल जो है बनाने का, कल्ब सलीम, साउंड हार्ट। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, किसी को कोई बात समझ नहीं आई या पूछना चाहता है तो पूछ ले इंशाअल्लाह। एनीथिंग यू वांट टू आस्क और मेंशन? अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक।
Astaghfirullah.